आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज की ऑर्गेनाइजिंग टीम की एक छोटी रिक्वेस्ट थी कि हम आज का प्रोग्राम वंदे मातरम से शुरू करें. कैन आई रिक्वेस्ट मिसेस प्रभाकर भट्ट टू काइंडली जॉइन इन प्लीज. नमस्कार एवरीवन. मैं चाहूँगी कि मेरे साथ आप लोग भी वंदे मातरम इस गीत को मेरे साथ गाएं. ये हम राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं, ये हम वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पोयम है उसे गा रहे हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ जॉइन मी. वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्. शुभज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फूलकुसुमदद्रुमलकशोभिनी सुहासिनी सुमदरबाशिनी सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्. वंदे मातरम. भारत माता की जय. आज का ये जो कार्यक्रम है हमारे अच्छे मित्र श्री M.R. वेंकटेश की लिखी हुई किताब है. यहाँ हिंदी में मेरे ख्याल से हम सब बातचीत कर सकते हैं. तो M.R. वेंकटेश जी ने किताब लिखी है जिसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह अ डेकेड ऑफ डीके. और थोड़ा बहुत जो मैं समझा वो तो यही समझा कि MRV जो हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं, ये उनकी रिकलेक्शंस नहीं है, ये उनकी लाइव कमेंट्री पिछले इतने सालों से जो है, जो कॉलम्स वो लिखते आए हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, करप्शन और भी न जाने कितने वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स. आई एम श्योर ये बात भी बाद में और क्लैरिटी से डिस्कस हो जाएगी. तो इतने सारे विषयों पे जो उन्होंने इतने सालों में लिखा है, ये उसका एक कलेक्शन है. बहुत ही फैक्चुअल तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है और हम चाहते थे कि अगर वो हमारे साथ आएँ, बॉम्बे में सब लोगों को अपनी बातें एक्सप्लेन करें तो शायद भारतवासियों के लिए अच्छा होगा. उनकी सोच में शायद से कुछ और नए एंगल्स जुड़ सकते हैं. इस कार्यक्रम को एक साथ रखने में एक और प्रयास का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है. तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जैमिन पांचाल आके एक और प्रयास के बारे में हम सबको कुछ बातें बताएं. Hello friends, and thanks for the guest for coming over here. It's been a real pleasure to introduce Ek Aur Prayas, which is now a culmination of an idea which it started something around 14 months back. The journey of Ek Aur Prayas started on June 2012 when India's deserving national record holder of high jump event, Ms. Sahana Kumari, where she got the place in London Olympics. And however, due to technical hurdles through administration, she was finding it difficult to take her journey to London Olympics. That's wherein she came in touch with Ek Aur Prayas, wherein we just thought about beyond just going into renting that she cannot go,
we decided to join hands and realize her dream. And that's where we tapped social media, and to our happy surprise, we were not disappointed, and social media did join our hand, and we could successfully send her to London Olympics. Having received this required momentum and motivation from the social media people, we decided to take yet another voyage, which was transition beyond Twitter, wherein we thought about not restricting the idea to help and to empower the people just on the social media, and that's where we started hitting the ground. Until now, Ek Aur Prayas has connected with thousands of activists and organization support across cities like Bombay, Pune, Delhi, and even Jagannath Puri in Orissa, wherein we have been also already talking about the solutions and not just the issues or talking about the victimization. Another aspect of Ek Aur Prayas is taking the various causes and not just, and it started with Assam riots, wherein along with Param Foundation in Bangalore, Ek Aur Prayas joined hands and we supported Seva Bharati to raise funds for them for the rehab work of the Assam riot victims. And we could successfully get 30 families rehabilitated. Subsequently, during the Maharashtra drought, we decided to again support Seva Bharati on their work, and we again went to the social media, which has always helped the Ek Aur Prayas team. The one more prayas of Ek Aur Prayas was been successfully taken up, and this time Ek Aur Prayas not only looked after the rehab but complete empowerment of the various families and the victim people were being taken care of. During Women Day on 2012, we had organized a self-defense workshop for women in Pune, wherein Supercop Mr. Bhanu Pratap had actually given them the coaching about the same. And time and again, Ek Aur Prayas always uses the social media for its causes and join hands with various people to work on the do-it-yourself model and not just rant about it. Currently, Ek Aur Prayas is working with LIV Foundation for its rehab work in Uttarakhand, wherein we would definitely look out for your support as well. Thanks a lot. The details are in the Ek Aur Prayas website. It's been mentioned. And the website is ekaurprayaas.org. Thanks a lot. थैंक यू जैमिन। आप सब देख रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट जुड़ी हुई है। इन सब का अभिनंदन करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए भी हमारे साथ जो है एक बड़े खास हमारे मित्र हैं। वैसे तो वो आज MRV के साथ चेन्नई से आए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल भी उनसे दोस्ती वैसे काफ़ी सालों से है। रंगनाथन जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो हमारे सारे गेस्ट का एक एक करके स्वागत करेंगे। रंगनाथन जी के बारे में जितना कहा जाए वैसे कम है। बहुत साइलेंट व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, और किसी भी तरह का अगर अच्छा काम हो रहा हो तो उसमें सपोर्ट देने के लिए हमेशा साथ खड़े हो जाते हैं। तो चेन्नई में एक HRNC, तो यानी कि आपका हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, इसको लेके एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे दिग्गज इन्वॉल्व हैं, धर्माचार्य सभा और भी कई सारे लोग। उसमें भी रंगनाथन जी का काफ़ी योगदान है। कई लोगों को उससे जुड़े विषयों से अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। फिर गौ हत्या को लेके जो एक छोटा सा अभियान है, उसके ऊपर इनके मित्रों ने मिलके एक वीडियो बनाया, और उसके भी प्रचार में रंगनाथन जी के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ। चेन्नई में यूजुअली जाता रहता था किसी ना किसी काम से, बट रंगनाथन जी के साथ रह के एक एक ट्रिप जो है बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। और मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करें। फडणवीस जी ने नागपुर से LLB की है। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट DAC बर्लिन से किया है।
वो 2 साल यानी 1992 और 1997 में नागपुर से म्यूनिसिपल काउंसलर भी रहे हैं और सेकेंड यंगेस्ट मेयर होने का उन्हें खिताब हासिल है. He is also the only person to get re-elected and serve as the mayor and council in Maharashtra, representing Nagpur as MLA since 1999. So मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा उनका सफ़र रहा है नागपुर के लिए. और अभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की तरफ से उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड मिला है. मैं चाहूँगा रंगनाथन जी उनका स्वागत करें. हमारे साथ विनय सहस्रबुद्धि जी भी हैं. मेरी सहस्रबुद्धि जी से कई बार छोटी छोटी मुलाकातें हुई हैं. बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो मैं खुद डिसिप्लिन हो जाया करता था. वैसे विनय जी इज़ पॉलिटिकल असिस्टेंट टू दी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट. ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी केशव सृष्टि. अगर आप भयंदर कभी गए हैं तो वहाँ बहुत ही बढ़िया रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो वहाँ के डायरेक्टर जनरल भी हैं. एजुकेशन वाइज ही हैज़ डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर. ही हैज़ डन हिज PhD, if I'm not wrong sir, in political science, and he has one of those distinctions of having been jailed during the emergency. 87 से 2005 तक वो he was a member of the Senate of the University of Mumbai. 99 से 2009 तक he was the in charge for National Training Cell. And recently, अगर आप सब लोगों ने obviously ध्यान दिया होगा, जब मोदी जी मुंबई आए थे, तो विनय जी की एक किताब का उन्होंने विमोचन किया था, which was Beyond a Billion Ballots. मैं चाहूँगा रंगनाथन जी विनय जी का भी स्वागत करें. फिर हमारे साथ हैं सुरेश प्रभु जी. सुरेश जी ने एजुकेशन वाइज जितनी उपाधियां हासिल की हैं मैंने उन्हें थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, बिकॉज वेरी हाईली एजुकेटेड. ही इज़ डन हिज BCom, ही इज़ डन हिज LLB, ही इज़ अ क्वालिफाइड CA. He has also done his doctorate from IFRI. उनकी 2 thesis इस वक्त ऑलरेडी सबमिशन में हैं. He has been an MP 4 times. तो 11th, 12th, 13th and 14th लोकसभा में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं. He was the power minister between 2000 and 2002 with an additional charge for heavy industries and public enterprises. 99 से 2000 के बीच में he had the portfolio for chemicals and fertilizers. 98 से 99 के बीच में he had the portfolio for environment and forest. And मई से जून 1996, जबकि NDA की बहुत छोटी सी सरकार बनी थी, बहुत कम समय के लिए सरकार बनी थी, तो उस समय he was the industry minister. 2002 से 2004 में he was the chairman of a very very important project which is the river interlinking project. वो आज हमारे साथ हैं एंड मेरी उम्मीद है कि उनके स्पीच के दौरान कई सारे इश्यूज के बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा. रंगनाथन जी से स्वागत करने की उम्मीद करता हूँ. Then we also have Ashish, Advocate Ashish Helar. Ashish ji currently मुंबई यूनिट के प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, बट प्रायर टू दैट आई नो हिम फ्रॉम हिज वर्क. आशीष जी वॉज द म्यूनिसिपल काउंसिल फ्रॉम बैंड्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, H West. और जिस तरह का उन्होंने उस एरिया में काम किया है, इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू गाइज जिनसे मिला मैं बाद में, लेकिन उनके काम के बारे में, उनका काम देख के मुझे ज़्यादा पता चला. एडवोकेट कहा है तो ऑब्वियसली ही इज़ अ लॉयर एंड ही इज़ ऑल्सो करेंटली द MLC. मैं चाहूँगा कि रंगनाथन जी उनका स्वागत करें. We also have Nandita. Nandita is the editor business in Rediff. और MRV के ज़्यादातर जो कॉलम्स हैं प्रैक्टिकली
नंदिता ने ही एडिट किए हैं। मोस्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ M.R. वेंकटेश, और मैं चाहूँगा कि M.R. वेंकटेश के दूसरे मित्र श्री रंगनाथन जी उनका स्वागत करें। And we also have the author of this wonderful book, जिसके बारे में अब हम थोड़े समय में बहुत सारी बातें सुनेंगे। M.R. वेंकटेश, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके पहले भी किताबें लिखी हैं उन्होंने। एक बार 2001 में उन्होंने एंटी डंपिंग के विषय पे किताब लिखी थी, और 2011 में ही हैज़ रिटन अ बुक सेंस, सेंसेक्स एंड सेंसिटिविटी। सो तीसरी उनकी जो किताब आ रही है, इतने बीच में उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ कितने सारे कॉलम्स भी लिखे हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये कई सारे उनके लाइव कमेंट्रीज जो एक साथ इस किताब में प्रस्तुत की गई हैं। तो मैं चाहूँगा कि रंगनाथन जी आज MRV का भी स्वागत करें। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए M.R. वेंकटेश की मित्र नंदिता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। Hello friends, MRV and the distinguished guests. Let me just tell you that my association with MRV goes back almost a decade or maybe more than that. And there was a time when I used to fight with my ex-editor as to edit, within quotes, MRV's columns because they did not need any editing. They were written in a very lucid form and straight from the heart. You may not agree with everything that MRV says or writes, but there's no lacking in sincerity. As far as this book is concerned, we had actually carried most of the essays in Rediff business section. As he rightly says, that this book is about the 3 M's that is actually ailing India and the Indian economy today. One is malgovernance, malaise, and maladies. And I agree, MRV. These are the 3 things that are really plaguing Indian economy. And what more about the book? I think you should all read it. It's a brilliantly written essays, and nowhere in any of the essays has he just been a armchair critic, where he's just criticizing for the sake of it. He has given suggestions, he has given prescriptions. So to what extent they will be followed is anybody's guess, but brilliantly written essays, I must say. Thank you.